Hello dear students, today let us do the next chapter, chapter 11, Yoga for Beginners. In this chapter there are some yoga exercises given, which are easy exercises are given here. You can try these exercises. Yoga is very useful. It has many benefits. They keep our body and mind healthy. Yoga exercises keep our body and mind healthy. Let's see some exercises. Some stages are given here. Stage 1, forward and backward bending. First stage is forward and backward bending. You can see in the picture. Read the step. While exhaling, bend your head slowly forward. Straighten the neck. What is the stage 1? Stage 1 first step is while exhaling. Exhaling मतलब सांस बाहर निकालते हुए, सांस बाहर निकालते हुए एक्सेल करते हुए हेड आगे करना है. बेंड योर हेड स्लोली फॉरवर्ड. स्लोली हेड को आगे की तरफ झुका बेंड करना है. स्ट्रेट एंड द नेक. नेक स्ट्रेट करना है. फॉरवर्ड बेंड करके नेक स्ट्रेट रखना है. Second step is backward bending. Forward bending, backward bending. While inhaling, bend your head backwards as much as you can. Inhale करते हुए, सांस को अंदर लेते हुए, सांस अंदर लेते हुए इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंड करना है. मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना बैकवर्ड बेंड करना है. फर्स्ट स्टेज इज दिस, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग. Stage 2, step 1, while exhaling, bend your head to the right. Bring your ear as close as possible to the shoulder without raising the shoulder. Straighten the neck. First step is stage 2. First step is while exhaling. Exhale करते हुए head right side में bend करना है. Bend your head to the right. Bring your ear close as possible to the shoulder. आपके कान राइट ईयर मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतना शोल्डर तक पहुंचाना है. शोल्डर ऊपर नहीं करना है. शोल्डर हेड को शोल्डर तक पहुंचाना है. राइट ईयर टच करने की कोशिश करना है शोल्डर विदाउट रेसिंग द शोल्डर. स्ट्रेटन द नेक. देन स्ट्रेटन करना है, नेक स्ट्रेट करना है. देन दैट इज कॉल्ड राइट बेंडिंग. उसमें स्टेप 2 है लेफ़्ट बेंडिंग. सेम लेफ़्ट साइड करना है. सिमिलरली वाइल इनहेलिंग, राइट बेंडिंग करते वक्त एक्सेल करना है. लेफ़्ट बेंडिंग करते वक्त इनहेल करना है. इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना है. बेंड योर हेड टू द लेफ्ट बेंडिंग. दिस इज स्टेज 2. Stage 2 is right and left bending. Stage 1 is forward and backward bending. Forward bending, backward bending. Stage 2, right and left bending. Right bending and left bending. Now stage 3, let's see what is stage 3. Right and left turning. Stage 3 is right and left turning. While exhaling, gently turn your neck to the right so that your chin is in a line with the shoulder. Just as given in the picture, you can see right turning. Right side की तरफ आपको head turn करना है. Turn your neck to the right so that your chin is in a line with the shoulder. Maximum आपको right side turn करना है. आपका chin shoulder के level में आ जाए. Then straighten the neck. Step 2, similarly while exhaling, turn your neck to the left. Exhale करते हुए लेफ्ट साइड आपको टर्न करना है. Turn your neck to the left turning. Stage 3, right and left turning. Now stage 4, clockwise and anti-clockwise rotation of neck. Clockwise and anti-clockwise rotation of neck. क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक के हैंड्स जैसे मूव करते हैं उस तरह क्लॉकवाइज. उसका उल्टा घूमते हैं तो से एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं.
While inhaling, slowly rotate your head clockwise in a circular motion. Exhale while coming down and complete a full rotation. Inhale करते हुए rotate your head, पूरा rotation, clockwise rotation देना है. सर्कुलर मोशन में हेड को पूरा रोटेट करना है. नीचे आते वक्त एक्सेल करना है. इनहेल करते हुए स्टार्ट करना है और नीचे वाला पोजीशन पे पहुंच के सांस को बाहर छोड़ना है. सांस अंदर लेते हुए स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ कमिंग डाउन, वाइल कमिंग डाउन एंड कंप्लीट वन फुल रोटेशन. एक्सेल करना है. कंप्लीट वन फुल रोटेशन. Clockwise head rotation. Step 1 is clockwise head rotation. Step 2 is anti-clockwise head rotation. Similarly, rotate your head anti-clockwise. इसी तरह आपको दूसरी तरफ anti-clockwise में घुमाना है. उल्टा सर को घुमाना है, हेड को घुमाना है. It's called anti-clockwise head rotation. So these are stages. 4 stages are there. Stage 1 is forward and backward bending. Stage 2 right and left bending. Stage 3 right and left turning. Stage 4 clockwise and anti-clockwise rotation of neck. So ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो. बी केयरफुल. किसी अडल्ट की मदद के साथ करने या योगा इंस्ट्रक्टर है तो उनके सामने करके देखना है. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. ओके, दिस इज सम स्टेजेस फॉर योगा फॉर बिगिनर्स. जो पहली बार योगा करने वालों के लिए ऐसे स्टेप्स कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट चैप्टर, मूविंग सेफ. चैप्टर 12, मूविंग सेफ. मूविंग सेफ. In this chapter we are going to learn about what is safe and what is when we are safe and when we are unsafe. We can decide. Help Monica. There is a girl here, Monica. Help Monica to decide which activities are safe and which are not when she is lost in the crowd. If she is lost, suppose she is lost in the crowd. She was in a market. Her father and mother उनके दोनों के साथ गए थे, लेकिन वो भीड़ में कहीं खो गई. तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? विच इज़ सेफ फॉर हर, विच इज़ अनसेफ. तो देखना है. सेफ है तो टिक करना है, अनसेफ है तो उसे क्रॉस करना है. फर्स्ट वन यू कैन सी, ask a stranger for help. But is she doing good? Is it safe? No, it is not safe, isn't it? It's not safe. Now second step she is doing, get into a different bus. अलग बस में चढ़ रही है, उसको पता नहीं है कौन सी किस जगह जाने वाली बस है, पता नहीं है, तो उसमें चढ़ना चाहिए? नो, शी इज़ डूइंग रॉन्ग थिंग. देन नंबर 3, वॉक होम अलोन. उसको क्राउड में खो गई है, भीड़ में खो गई है, तो उसे पता भी नहीं है रास्ता किस तरफ है, फिर भी वो अकेले घर की तरफ जा रही है. तो वो सही है? नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ. तो उसे भी क्रॉस करना है. देन नंबर 4, आस्क ए स्ट्रेंजर फॉर ए लिफ्ट. किसी अनजान आदमी से कार लेके जा रही है तो उनसे लिफ्ट मांगना, वो सही है? नो, इट इज़ अनसेफ. देन नंबर 5 इज़ गिवन, रिंग अप हर पेरेंट्स और गार्डियन. किसी दुकान में जाके या दुकान जाके उनसे फ़ोन मांग के रिंग अप पेरेंट या गार्डियन को कॉल करना है. इज़ इट सेफ? Yes, it is safe. She can do that. Then ask a policeman for help. She can ask, उधर कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई पुलिसमैन है तो उनसे हेल्प मांग सकते हैं. Yes, it is safe. So these are some safe and unsafe reasons है, unsafe things है. She can do what she can do, what she cannot do. You can help her to decide. So which are safe things, safe ones you can tick, which are unsafe you can cross. Now quiz time is given there.
अ स्ट्रेंजर ऑफर्स यू अ बिग चॉकलेट, व्हाट विल यू डू? कोई अनजान आदमी आके आपको एक बड़ा चॉकलेट दे रहा है, बड़ा सा टेस्टी चॉकलेट दिखा रहे हैं, तो आप ले लोगे या व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू, आप वो ले लोगे या नहीं? ऑप्शन दिया है, यू विल एक्सेप्ट इट हैप्पीली, यू विल रिफ्यूज इट। आपको क्या करना चाहिए? सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। वो आप जानते नहीं हो कौन है, तो उनसे चॉकलेट नहीं लेना चाहिए। यू विल रिफ्यूज इट, वही सही ऑप्शन है, यू विल रिफ्यूज इट, ऑप्शन बी। रियल लाइफ में दिया है पॉइंट्स, डू नॉट गेट स्केर्ड व्हेन यू आर लोस्ट, थिंक ऑफ करेक्ट एक्शन टू बी टेकन एंड एक्ट अपॉन इट। अगर आप कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? थिंक ऑफ द करेक्ट एक्शन। आपको डरना नहीं चाहिए, आपको समझदार बन के हिम्मत दिखाना चाहिए, आपको करेक्ट एक्शन लेने का हिम्मत दिखाना चाहिए। ऑलवेज़ कीप योर आई कार्ड विथ यू, कहीं बाहर जाओ या स्कूल जाओ तो आई कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास रखना चाहिए। देन बी केयरफुल व्हेन यू लीव योर होम, आपको घर से निकलते वक्त बहुत केयरफुल रहना चाहिए। डू नॉट गो आउट अलोन, आप एक छोटा बच्चा है तो बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। आस्क एन एडल्ट टू अकम्पनी यू, आपको कहीं जाना है तो कोई बड़े के साथ जाना है बाहर। ऑलवेज़ होल्ड योर पेरेंट्स हैंड व्हेन यू आर इन ए क्राउडेड प्लेस, अब कहीं भीड़ वाली जगह में है, मार्केट में है, तो आपके पेरेंट्स की हाथ पकड़ के रखना है। वो अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, आपको किसी के साथ जाना चाहिए। और आई कार्ड आपके साथ होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। तो कोई पुलिसमैन या कोई मिले तो उनसे हेल्प मांगने चाहिए। फ़ोन नंबर है तो आपको फ़ोन नंबर याद करना चाहिए पेरेंट्स का। फ़ोन कहीं से भी फ़ोन मिले तो उसे मीन्स किसी दुकानदार से या शॉपकीपर या पुलिसमैन से फ़ोन मांग के फ़ोन कर सकते हो आप। ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो मूविंग सेफ़, आप बाहर जाते वक्त सेफ़ कैसे रहना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बताया है इधर। ओके, बी केयरफुल while going out. Okay, thank you.